our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. I even had like undergarments जिसपे Hannah Montana बनी Oh हुई my है. God. क्यों? What is your full name then? Like Miley Jen. Hi guys, welcome back to our podcast. This is our episode 4 Yes. of us being consistent and you guys being consistent Yeah, and these pillows being consistent. in front of our belly. Because right now Yeah. it's a necessity. Right now, yes. क्योंकि summer बहुत load हो रही है अभी. Soon. Yet to come. But then very soon, because we have started gymming and we have started eating healthy food. So Right, we have. right, We yeah, have. we अभी बस have. आज हमने भेलपूरी खा लिया. हाँ, वो तो थोड़ा it Hmm. is like a fucked up situation, but whatever. Soon, very soon, we can flaunt our bodies and we'll get rid of these pillows. We'll keep them here or here anywhere. Just But not in front of our yeah, bellies. so wait for it. And fun fact, at this point, it's a late night show because Yeah. it's 2 a.m. and we've tried shooting it since 10 p.m. और माइक का कुछ ना कुछ लफड़ा हो ही जा रहा है अब मैं बोल रही हूँ बट आई जस्ट होप कि ये वाला सही रिकॉर्ड हो. Yeah. And just by the way, this is, I think, our 10th take. And whatever we are speaking, this is just coming very naturally. And हमने शुरू में नहीं expect किया था कि हम ये भी ऐड करेंगे. But Let's काफी get into the episode. I'm yeah. Yudasha Ratra And I'm Sakshi Jain, and this is our podcast called Cause Cause Girl Girls Sing. Sing. Yeah. Yeah. So, what are we going to talk about today? Today we are going to talk about nostalgic stuff. Mm-hmm. A trip down memory lane. Let's go. Where we're going to talk about early 2000 stuff. So basically, we, I think, come from a generation. Don't yawn. I tried. Thanks, actually. I just got it. Smart. कोई नहीं हाँ आई एम सेइंग हाँ वी आर फ्रॉम अ जनरेशन जिसने बहुत क्विक ट्रांजिशन देखे हैं मतलब हमने बहुत लिमिटेड स्टेज ऑफ कैसेट्स भी देखा है बस वी ऑल्सो but we also saw a transition to Yeah, CDs CDs and all. and then हमने केबल भी देखा है but हमने टाटा स्काई भी लगते हुए देखा है so like a quick transition. Yeah, and like we have seen a lot of things. So, मतलब 90s का it's a trend. 90s songs, 90s nostalgia, 90s food and all of that. But nobody actually talks about early 2000 kids. You know, even we had like our share of things, the nostalgia. So, yeah, tell us something. I think favorite childhood memory is 9XM. She's laughing because I'm saying it for the 10th time. But yeah, it is a Yeah. favorite Big memory. love. हाँ Absolutely. क्योंकि आई थिंक वो जो तुम्हारा गाना आने की खुशी होती थी और एक पर्सनल अटैचमेंट होता था I एक गाने know. से कि ये मेरे वाला गाना है सब चुप हो जाओ मुझे खड़े होके स्टेप्स कॉपी करने हैं और फिर वो एक आई डोंट नो आई कांट एक्सप्लेन दैट वियर्ड फीलिंग जो फीलिंग आती थी कि ये गाना अगर मैंने अभी बैठ Yeah. के टीवी के सामने नहीं देखा ध्यान से तो मुझे और कहीं एक्सेस नहीं है उसको सुनने का Mm-hmm. मतलब विच वॉज नॉट देयर और कोई आउटलेट नहीं था तो बहुत ही एक वियर्ड सा फीलिंग आता था कि इट्स गोना स्लिप अवे Yeah. बट इट्स वेरी We have to स्पेशल grab the opportunity. नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट सॉन्ग लिखा आता तो तुम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते थे अच्छा मेरे वाला Mm-hmm. गाना आने वाला है ये वाली वाइब का गाना आने वाला है तुम इतने Yeah. ध्यान से इसको सुनते थे कि भाई स्टिल उसकी The लिरिक्स lyrics and everything. हाँ बहुत We अच्छे से याद I होती है actually remember the video also. You हाँ know, because इतना बार देखते थे and बार बार अगर कुछ डांस सीखना होता था ना तो बार बार we used to wait कि अभी वापस आएगा तो we'll learn that step and all of that. I remember we used to call like siblings में हम एक दूसरे को बुलाते थे कि bro दे गाना आने वाला है जल्दी तो भाग के सो रहा होता था जाग रहा होता था खाना बना रहा होता था कुछ भी तो भाग के आते थे कि next to next आता था ना used to be gold. And you remember those two aliens जो आते रहते थे उसके नीचे? हाँ I'm वो forgetting the बीच में name. आके कुछ रैप भी करते थे हाँ लेम हाँ जोक्स मारते हाँ थे वो भी आते थे सेलिब्रिटीज भी आते थे हाँ प्रमोट प्रमोट करने करने के लिए नाम क्या अपना होता था I'm forgetting it's छोटे something बड़े छोटे हाँ बड़े छोटे आई थिंक या yeah छोटे मियाँ बड़े something like that. हाँ Even छोटे बड़े Biggie Billy. हाँ हाँ Yeah, वो and सेम यूनिवर्स के थे बट वो कभी ऐसे mm. आमने सामने नहीं आते थे But seriously, मतलब even celebrities used to come for movie promotions and everything. हम्म
influencers of our time. OG, Yeah. OG influencers. Yeah. I think the other source of songs was songs.pk. Yeah, I remember. भाई उसमें ऐसा होता था कि 1 घंटे के अंदर तुम सारे जितने भी तुम्हें कूल सॉन्ग्स आते हैं तुम सब याद कर लो, क्योंकि अभी Mm-hmm. तुम्हें सारे डाउनलोड करके पेन ड्राइव में डालना है फॉर अ पार्टी, फॉर योर बर्थडे। तो वो एक होता था कि तुम सारे सॉन्ग्स कर सकते हो, मतलब 9XM के अलावा कुछ अगर सोर्स था हाँ, गानों मतलब के लिए। उसमें डाउनलोड करके कैन पुट इट ऑन इन योर फोन. हम्म आई रिमेम्बर भाई उनका इंटरफेस इतना खराब होता था ना, मतलब देयर हम्म वुड बी लाइक 50 100 डाउनलोड बटन्स. अब तुम डिसाइड करो एंड हम्म, ऑल स्पार्कली वंस एक एकदम ब्लिंक ऐसे करता रहता था। ब्लिंकर्स. और मतलब फिर तुम एकदम ऐसे सब पे जाते थे एंड कोई तो और ही साइड पे लैंड कर जाते थे एंड देन यू विल कम बैक टू दैट एंड देन यू विल प्रेस इट अगेन एंड फिर वो डाउनलोड होना चालू होता था. वो कितना एक्साइटमेंट होता था, फाइनली वी हैव डाउनलोडेड दिस सॉन्ग. और फिर लास्ट में पता चलता था कि वो सिर्फ उसका कुछ अलग सॉन्ग डाउनलोड हो गया. हुआ है कभी तेरे साथ कुछ हाँ उल्टा कि सॉन्ग डाउनलोड हो गया, कुछ तो लफड़ा हो जाता था. हाई क्रेजी टाइम्स. आई ऑल्सो रिमेम्बर pagalworld.com. उससे भी मतलब it was similar to this website only and उस पे भी I used to download a lot. Crazy. आई थिंक उसके अलावा आई वाज अ मेजर मेजर डिज्नी किड। मतलब Mm-hmm. मुझे भी याद था कि 5 बजे हैना मंटाना आता था, फिर विजिट्स ऑफ विविडली प्लेस आता था, फिर स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी आता था, और एक आता था लिजी मैगवायर, दैट्स सो रेवन। मतलब देखती मैं ये सारे ऐसे हिंदी में ही थी, बट क्योंकि उस टाइम आई थिंक इतना फ्लुएंट नहीं होता था, बट अलग ही फन आता था देखने डिज्नी का। गर्ली तो एक एरा था भाई, स्पेशली दैट स्पार्कल से जो वो स्पार्कल लोगो से. बनाते थे। Loved it एकदम. भाई हैना मोंटाना की तो ना आई वाज एम्बैरेसिंगली ज्यादा ही क्रेजी फैन। Mm-hmm. मतलब if you'll enter my room, there was a big Hannah Montana sticker, then अंदर जाके सिंगल बेड था, उस पे बेडशीट Hannah Montana की थी, फिर क्विल्ट Hannah Montana की थी, फिर 2 पिल्लोज थे जो Hannah Montana के थे। Miley, then you sponsor this please. then you open my cupboard, then पूरा stickers थे Hannah Montana and her friends, टी-शर्ट था, खैर वो तो था ही, स्कूल बैग, Mm-hmm. बॉटल, टिफिन, ये सब तो था ही। भाई very embarrassingly I even had like undergarments जिस पे Hannah Montana बनी Oh हुई my है। god, क्यों? you have to be kidding me. क्यों? I'm very sure कि कोई था ऐसे बनिया अंकल टाइप बैठे होंगे जो सोच रहे हो कि ये ब्लॉन्ड हेयर वाली बंदी बहुत चल रही है, जहाँ तुमसे छापा जा रहा है इसको छाप दो। तो छापते उन्होंने जाओ. लिजिट हर जगह छाप दिया था और मैंने खरीदा था। जहाँ जहाँ वो छपी थी वो मैंने लिया था। I also remember I was obsessed with this name Miley. मतलब उसका कैरेक्टर का नाम था, उस टाइम तुम जानते भी नहीं थे ना who कि is the रियल। real person and all. बाद में पता चला कि उसका real हम्म name is also Miley. So I was crazily obsessed. I was like कि मेरा नाम क्यों नहीं है Miley, मुझे इतना अच्छा cool लगता था. And I remember I used to go to this computer class. उसमें back जब मैं बहुत छोटी थी I was like cute little girl. कंप्यूटर क्लास में और सब बड़े बड़े आते थे. So there was like a bunch of people. They would be like, "Hi, what's your name? You're cute." ऐसे करके and I would be like, "Yeah, my name's Smiley." भाई second thought आया ही नहीं. मेरे चेहरे पे क्या confidence था. Yeah, my name is Smiley. And they were like, "Oh, what is your full name then?" Like Miley Jen. ये मैच नहीं कर रहा थोड़ा सा. ओ पता नहीं जैन मेरे. साहब ने अपनी बेटी का नाम माइली रखा है। भाई एंड देन मुझे इतना एंग्शियस फील होता था कि व्हाट इफ मेरे डैड आ गए एंड देन उन्होंने मुझे असली नाम से बुला लिया, मेरी आइडेंटिटी चली जाएगी, कितना ये लोग क्या सोचेंगे. Ironically, just like Hannah Montana हाँ, situation. आई नो राइट. क्रेजी. तो वही ना हम लोग इतना उसको कर लेते थे ना अपने दिमाग में दैट वी वांट टू लिव दैट लाइफ. क्रेजी भाई होता इवन था. पोगो में एक वो ताकेशीस कासल, या ताकेशीस कासल या बोलते हैं या ना, या उसमें जो जावेद जाफरी का वो होता था, कमेंट्री होती थी क्रेजी भाई। बेस्ट. और एक वो आता था आर्ट एंड क्राफ्ट्स वाला, जिसमें कुछ आर्ट कुछ तो अटैक. बनाते रहे। हाँ आर्ट भाई वाज अटैक. क्रेजी टैलेंटेड। और जो हमारा पेशेंस लेवल भी हाई हुआ करता था उस टाइम पे, कि हम उसको काफी. पेशेंटली बैठ के देखते थे, वो एंड में जब वो छोटी छोटी चीजों से वो कुछ बिग इमेज बना हाँ देता वैसे था। कपड़े वपड़े आसपास से कुछ तो भी लेके आता है, स्ट्रॉ लेके आ रहा है कहीं से हाँ एंड देन ही वुड ऐड लाइक खाने का. स्मॉल एलिमेंट्स और कुछ हाँ बड़ा एंड सा देन बन वो जाता फिर था। ऊपर वो कैमरे से दिखता था पैनल। तो ऑल ऑफ दैट. आई रिमेम्बर इट वाज माय ड्रीम उसके स्टूडियो में जाना. यू हाँ रिमेम्बर नारियल अन्ना. हाँ हाउ हाँ। कैन वी फॉरगेट. तो मतलब ये कितना क्रेजीली क्यूट और एकदम मस्त स्टूडियो होता था. यूज्ड टू हैव दिस ह्यूज कलर पेंट का paint ट्यूब्स। colors and then tubes and इतना clean इतना white. favorite. मतलब I also tried उसका ये
कपड़े वाला बनाना, मैं मम्मा की साड़ी लेके आती थी या फिर बेडशीट लेके आ कुछ रही तो हूँ, बन कुछ तो जाएगा भी काजू लेके आ रही हूँ, उसकी भाई। आंख बना रही हूँ, एक पता नहीं क्या बन रहा है, बस रख रही हूँ। क्रेजी एमटीवी का भी फेज था जिसमें ये रोडी स्पिट्सविला आना शुरू हम्म हुए थे, तो आई थिंक निखिल चिनप्पा वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम, ही वाज लाइक द दिस हॉट एमटीवी गाय हम्म उस टाइम पे। आई डोंट नो, मुझे नाम से याद नहीं है, ऑब्वियसली फेस आई वाइज आई याद थिंक होगा। स्टार्टेड वाचिंग ऑल दीज थोड़ा सा जल्दी बिकॉज ऑफ माय एल्डर ब्रदर, तो काफी जल्दी आदत लग गई थी, बट ही वाज द हॉट आई गाय। एम द एल्डेस्ट वन। हाँ मतलब था, मैंने इतना स्प्लिट्सविला रोडीज इतना नहीं देखा फॉर सम रीजन। आई यूज्ड टू वॉच वेब्ड हो गया, प्यार तूने क्या किया, ये है आशिकी, इमोशनल अत्याचार, ऑल दीज क्रेजी थिंग्स। भाई, इमोशनल अत्याचार ना अब देखने में लगता है कि कितना ड्रामेटिक है, कितना फालतू है। उस आई टाइम नो। पे तो तुम बिल्कुल सीरियसली देखते थे कि भाई उसने चीट कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड को, कि ये अब कैसे तो हो इसका गया, गेम खत्म हो गया। क्रेजी। उसमें ये भी तो बिकिनी वाला भी तो फेमस हुआ था ना इसी से, क्या। हाँ, बिगिनी शूट, हाँ, क्लोज दिखने फ्रेंड्स थे, के फिर 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 नया हो हो गया, गए, फिर नया हो गया, प्यार फिर शुरू लव हो हो गया। गया। भाई क्रेजी बट कुछ भाई। भी अगर शो आता था ना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग, कि वो एक बहुत ज्यादा लगता था कि ये इसी टाइम के लिए है, हम्म मतलब यू कांट री वॉच इट, वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा व्हेनेवर यू वांट इट। अभी अगर मेरा फेवरेट शो आ रहा है, आई जस्ट वांट टू वॉच इट विद ऑल माय आई कंसंट्रेशन, नो। आई वांट टू होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि इट्स अ वेरी राइट नाउ वाला फीलिंग, सो यूज्ड टू बी देयर, तुम एक्चुअली होते थे वहां पे जब तुम कोई चीज देख या रहे हो। एंड द फैक्ट वी यूज्ड टू बी सो पंक्चुअल, मतलब 8:30 बजे आना है तो 8:25 में बैठ जाना है वहां जाके, कुछ हाँ, भी सो दुनिया आई में एम चल सेइंग रहा इट वाज हो। सच एन इमर्सिव आई एक्सपीरियंस नो। टू वॉच टीवी। अभी कोई मूवी भी देखते हैं कुछ, अभी हम फोन पे हैं, वी नो वी कैन, हम उसको वॉच इट पीछे कर अगेन सकते हैं, आगे कर एनीवेयर। सकते हैं, वी कैन टैप इट अगेन, वॉच इट अगेन, सम फीलिंग ऑफ दिस इमर्सिव एंड वाला टू व्हेन वॉच व्हेन इट। वो एडवर्टीजमेंट वाला टाइम आता है, लाइक क्या क्यों आ रहे हैं बार पर बार। एड्स भी आत्र हो जाते थे यार, मैं तो, है तुम ना, अपने सारे सेंसेस से उस चीज को देखते एंजॉय थे। कर आई पा रहे नो। हो। एंड यू रिमेम्बर हम लोग को ना चैनल के नंबर तक याद रहते थे, लाइक 361 पे ये आने वाला है, ये चैनल आता हाँ है, हाँ, 355 पे ये आता है, 128 पे ये आता है, ऐसे मतलब मुझे याद है, पता नहीं क्यों, मेमोरी। कि सोनी 111 पे आता था, और फिर शायद 113 पे सब आता था जिसपे तारक हाय, मेहता our और ये memory सब। used to be so freaking गुड, strong. अभी तो ये नहीं I याद। remember 351 पे MTV आता था एंड 353 पे 9XM आता था। हम्म। और उसी के बीच में ये सारे आते थे म्यूजिक वाले। क्रेजी। भाई वैसे आजकल बच्चे वो पीते हैं क्या, टैंग और रसना? नहीं, रसना तो पहले भी था ब्रो। रसना इज। बट आई रिमेम्बर मेरी मम्मी क्या करती थी, वो रसना और टैंग को फ्रीजर में डाल देती थी रात को, एंड देन शी यूज्ड टू गिव अस स्कूल में, और वो पूरे दिन वो मेल्ट होता रहता था, फिर तुम हम्म उसको धीरे धीरे पीते जा रहे हो। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी चाइल्डहुड मेमोरी, हाँ, टैंग घोल घोल के पीते थे वो नींबू मुझे पानी वाला। रसना याद है, रसना एंड रूअफ़ज़ा आल्सो, वो तो अभी भी हाँ, चलता है, बट देन आई रिमेम्बर बट लाइक। वो नाउ रोजा इज नॉट लाइक अ स्टेपल जो घर पे आई मिलेगा ही नो। मिलेगा, उस टाइम पे वो एक एज अ राशन का आइटम था, कि वो हाँ, होता ही है घर एंड में। समर एसेंशियल, लाइक रूह अफ़ज़ा तो आना ही आना है समर पर फॉर वेकेशन सम में। रीजन मुझे रोजाना दूध बिल्कुल नहीं पसंद था, आई यूज्ड टू लव द पानी। No, I used to love the नो, दूध one. I'd never liked that नो, पानी आई तो वाला. It's like लव, sugary water. उसमें हाँ, सो इट मजा यूज्ड टू आता बी था. रिफ्रेशिंग ना, उसमें फिर तुम चाट मसाला डाल लो या No, नमक, इतना मस्त, I'm more of रिफ्रेशिंग। that milk and ruafza girly. कमेंट डाउन, Comment रोजा down. वाटर और रोजा मिल्क। Milk. Even the color used to be so good, rose pinkish. Love. Are you from convent by any chance? नहीं, भाई, कोएड। कोएड तो नॉट था द सेम ही. थिंग, हाँ नॉट। मतलब, but bro, you won't believe. I remember, I can't remember मैं last night dinner में क्या खाया, but I know our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who are against us. मतलब इतना आमीन, रटा हुआ है आमीन, मतलब। आमीन और आमीन, आमीन। आमी बोलते थे हम लोग for some reason, पता नहीं अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं सब। हाँ, बट तुझे देख रही है मेमोरी इतना भरा हुआ है ना दिमाग में, एवरीथिंग आई इवन रिमेम्बर ऑल द प्रेयर्स एंड ऑल दैट वी यूज्ड टू डू। भाई अभी अमेजिंग। मैं परसों रेडी होते होते रैंडमली मैं रेडी होते होते एक प्रेयर गा रही हूँ, जो मेरे को एकदम से याद है, मेरे स्कूल की प्रेयर थी। इट वाज लाइक
Let us sing together, let us smile together, let us pray together to और मैं ready हो रही हूँ let us pray together to पीपल जो कॉन्वेंट से Almighty होंगे they would know this song. yours Showers of blessings, showers of blessings we need. मतलब ये ओजी सॉन्ग था, वो बहुत एकदम ऐसे था. तो कोई गिटार भी बजाता था क्या इसमें हाँ, पूरा it सेटअप sounds होता like था a हम लोग love के song नो. बहुत क्रेजी. एंड देन हिंदी प्रेयर्स भी तो होती थी. इतनी शक्ति हमें हाँ ये तो देना मेरे भी होती थी दाता. सेम एंड देन काफी दो तीन भी होती थी. एंड देन प्लेज एंड देन नेशनल एंथम. दैट्स इट. प्लेज तो कुछ नहीं होता था मेरा नेशनल एंथम होता प्लेज था नहीं होता था. आई हैव टू बी किडिंग. क्या प्लेज कि हम पढ़ाई करेंगे नो, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आई लव माय कंट्री. नो ये what the fuck ये why ये तो वो होता था ना, मतलब एक कंपल्शन टाइप नहीं होता. जैसे नेशनल एंथम होनी है स्कूल में, वैसे प्लेज भी होता ही था. नहीं भाई Why I remember this because we used to do पूरा pledge, पूरा बोलते थे except for that line. All Indians are my brothers and sisters. which is true ना मतलब वैसे भी But वो country का रिबेल फेस pledge में करते है. तुम उस टाइम पे हाँ, but कंट्री का प्लेज है ये हाँ मतलब हाँ तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या पता नहीं, बट है वो प्लेज के मतलब all everyone is family वैसे करके. तो बस वो लाइन छोड़ के हम पूरा प्लेज बोलते थे. That used to be ओ so गॉड नहीं मेरे crazy. स्कूल में नहीं होता था ये वो मतलब काफी कमेंट डाउन अगर आपके स्कूल में होता है तो. बट होता हाँ, है ये होता ऑडियंस था. नहीं है हमारी सॉरी, होता था. बट सीरियसली भाई. एंड यू रिमेम्बर ऐसे असेंबली के भी टाइम आता था, लाइक क्लास वाइज कि हाँ ये हाँ होगा हाँ इस हाँ हफ्ते ये. और भाई जान निकाल देते थे भाई, सारे यही है टैलेंट जो है. भाई मुझे याद है हमारी ना 10th में लास्ट असेंबली थी तो हमने उसको फेयरवेल असेंबली ऐसे मान रखा था क्योंकि उसके बाद तुम 11th 12th में जाओगे तुम्हारी फैकल्टी चेंज हो जाएगी देन योर पूरा स्टडीज में असेंबली वगैरह होता नहीं था तो भाई मैंने कहा लास्ट चांस है मैंने होस्टिंग भी करी मैं डांस भी करा और मैंने गाना भी गाया और मैं 6 स्टैंडर्ड से शायद अपने स्कूल अपनी क्लास असेंबलीज में डांस कोरियोग्राफ करती थी सबका ड्रेसेस भी कहाँ से लाना है साइड ये वो बिजनेस. तब से फ्रीलांसिंग बिजनेस चालू है तो मेरे को याद है भाई मैंने सब सब कुछ कर दिया था वो असेंबली टाइम पे भाई कितना होता था ना कि मॉर्निंग प्रेयर कौन करेगा, फिर गाना होता था पूरा, फिर थॉट ऑफ थॉट ऑफ द द डे. डे वो सबसे टट्टू लगता था सबसे टट्टू बच्चे को मिलता था वो कि भाई इसको Thought of पार्टिसिपेट the करा day लो is honesty is the best policy. Thank हाँ you. और फिर मतलब रिपीट भी होता है. बेचारा I repeat. न्यूज ऑफ Thought द डे news of the day. वो मुझे सबसे हाँ. लगता था जो रिस्पॉन्सिबल इंसान हो सकता है जो सुबह उठ के देख सकता है ये सब आई हम वाज लोग नेवर दिस हम वन लोग घर से करके नहीं लाते थे, मतलब एक इंसान को देते थे बट वो हमेशा भूल जाता था. न्यूज़पेपर ढूंढ रहे हैं हम लोग एकदम जल्दी आके, एकदम जब असेंबली होती थी तब 1 घंटे पहले आना हाँ कंपल्शन है. एग्जैक्टली कोई क्या बोलता नहीं था बट इट बट वाज है लाइक भाई, अकाउंटेबिलिटी अंदर से आता था. और क्योंकि ऐसे कंपटीशन टाइप होता था ना कि ये क्लास का ये चल रहा है, सेक्शन वाइज भी होता था हमारा. हाँ तो सेक्शन वाइज ही होती थी तो और ज्यादा असेंबलीज कंपटीशन हो जाता था बिकॉज यू हैव तुम्हारे फ्रेंड्स ही तो हाँ बहुत ही. बट इट यूज्ड प्रूव टू बी करना है वेरी मच काफी फन फन. हम लोग का तो ऐसा भी होता था, ओपन असेंबली होती थी जहाँ पे people used to stand obviously, हम्म and then closed assembly होती थी तो उसमें क्लासरूम में असेंबली होता था. तो एंड माइक पे बोलते थे सब हाँ, कुछ मतलब माइक पे बोलते थे एंड स्पीकर्स होते थे तो सारे अगर क्लास किसी ने में. डांस वांस प्रिपेयर करा हुआ है तो बस नहीं होता था, अगर बारिश चल रही है ओ या फिर ठंड है शिट काफी या धूप काफी है तो फिर ओपन असेंबली नहीं होती थी. अच्छा नहीं हमारे पास दो ऑप्शंस थे तो हमारे पास ओपन कोर्टयार्ड भी था और अंदर वाला हम्म. ऑडिटोरियम भी था ओ. तो इन एनी केस विंटर्स में और रेनी सीजन में हमारे अंदर वाला ऑडिटोरियम में होती थी ओ. अदरवाइज जब पता नहीं हम्म. कौन से सीजन में बाहर होता था तो वी हैड दीज टू ऑप्शंस क्योंकि भाई हाँ, फिर तो फ्लॉप हो जाएगा ना तुम नहीं हम लोग ड्रेस ऐसे. लेके आए हो सब करके हाँ, आए हो वही हम लोग का ऐसे ही होता था, लाइक हफ्ते में 3-4 बार ओपन होता था and बाकी तो टाइम से. असेंबली है तो ऑल द वेदर गॉड्स अलाइन भाई और एक और चीज होती थी, जिनका भी बर्थडे होता था ना उन सबको स्टेज पे बुला लेते थे ओपन असेंबली के टाइम. तो लाइक इतना बड़ा स्कूल एकदम पूरा, नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चे खड़े हुए हैं हर सेक्शन के. एंड देन जिसका भी जन्मदिन है आओ सामने, फिर पूरा स्कूल उनके लिए हैप्पी बर्थडे टू नहीं यू हमारा ये नहीं होता था करता हमारा सिर्फ था. क्लास टीचर करती थी इन हाँ, क्लास वो क्लास में जिसका भी बर्थडे है वो क्लास में होता था जब नहीं होता था. बट या इट्स टू बी रियली फन. और फिर तुम चॉकलेट्स लेके जाते हो टीचर्स के लिए बेस्ट फ्रेंड्स के लिए फिर सबके लिए टॉफी का पैकेट लेके जाते हो हाँ ना. अभी भी करते होंगे क्या बच्चे ये सब आई डोंट नो. आई आई रिमेम्बर कि वो ट्रे में हम लोग का ये भी होता था कि क्या
मतलब I कितना think now क्रिएटिव तुम the हो सकते हो. brands would have increased now. कि Kinder ब्रांड्स Joy दे रहे हैं, तो Toblerone है. are. I think किंडर so. जॉय तो हमारा एकदम प्रीमियम हाँ, स्नैक ये था. मैं ऐसे गेस प्रीमियम. कर रही हूँ. आई एम नॉट सीन या आई डोंट नो क्या होता है, बट मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी ब्रांड तो इंक्रीज. होगी. मतलब मेरा हमारा तो बस यही था कि मेलोडी या क्लेयर सबको मिलती थी दो दो, और जो बेस्ट फ्रेंड हुए डेयरी उनको मिल्क डेयरी एंड मिल्क ऑल. मिलती थी, और जो टीचर है उनको बड़ी वाली डेयरी मिल्क हाँ, मिलती थी. सिल्क एंड ऑल. हाँ, आई रिमेम्बर कि हमारे ना स्कूल में ऐसे कंपटीशन होता था कि तुम ट्रॉफीज तो लेके जाओगे बट किस चीज में लेके जाओगे. तो उसमें कितना क्रिएटिव हो सकते हो. कंपटीशन मतलब कंपटीशन नहीं बट ऐसे अनसेट कंपटीशन. अनसेट कंपटीशन कि मतलब कितना ऐसे फिर देखते थे, वाओ इसका कितना सुंदर. तो लोग भाई इतना ऐसे स्टफ्ड टॉय के अंदर कुछ तो ऐसे कटोरा डाल के लेके आ रहे हैं एंड देन उसको दे रहे हैं. आई नो. और फिर मुझे कुछ ऐसे ऐसे याद आई पॉल किसी ने जैसा. बेचारे ने स्टफ टॉय का मुंडी काट के मुंडी उठाई है नहीं, वो बॉडी में. एक्चुअली बास्केट ही था बट स्टफ टॉय जैसा दिखने समझ में गई, ऐसे. हाँ. एंड देन कुछ पर्ल से अपने मॉम का बैग लेके आ रहा है उसमें दे रहा है. तो ऐसे What the बहुत चलता था भाई. नहीं, ये क्या क्रेजी. शोशाबाजी हो रही है एमपी में. मेरे में नहीं था ऐसा कुछ भी. मजा आता था. भाई स्कूल बट वाज स्कूल नाइस. के कैंटीन में आई रिमेम्बर, मैंने कभी नहीं खाया कहीं और वो चिप्स. हम्म. स्कूल के कैंटीन में मिलता था फन स्टिक्स. तो वो एक पैकेट भाई एक लाते थे और सब खा रहे हैं एक जगह पे खड़े होके. बस ऐसा लगता था इस पैकेट का एंड टच ना हो जाए बस अभी. फन स्टिक्स होता था, और फिर एक ओएस आता था ओ जिसमें यस, ऐसा ओ यस. ऐसा इमोजी होता था. मुझे याद है सबको हाँ. पर्पल वाला पसंद होता था, दैट खट्टा मीठा वाला. नहीं, इतना आई यूज्ड टू लाइक द ग्रीन वन. अच्छा उसका, ग्रीन बट आता उसका था, रेड आता था, पैकेट येलो कितना आता था. गंदी क्वालिटी का होता था भाई, ऐसे एकदम पतला सा. डू यू रिमेम्बर हिप्पो? हाँ हाँ, भाई ऐसे. उसका सही आता था. बेस्ट. पता नहीं वो सम रीजन वो आउट ऑफ एग्जिस्ट करने ही बंद कर दिया मतलब. और बहुत बस चला गया मार्केट से, पता ही नहीं चला अच्छा कहाँ. था वो. हाँ, वो काफी से प्रीमियम टाइप होता था. मतलब ओएस इज आई थिंक 5 रुपए का एक पांच पैकेट आता रुपए था. का. हाँ, हिप्पो वाज आई थिंक थोड़ा प्रीमियम थोड़ा लेवल. एक्सपेंसिव बट that was my favorite. So also मुझे एक और चीज याद आई. भाई स्कूल में मनता था फ्रेंडशिप डे. एंड हाँ, इतना वो होता था ना कि ट्रू जिसके बार्टर सिस्टम होता ट्रू था. बार्टर सिस्टम. और मतलब जिसके पास जितने ज्यादा बैंड्स है दैट इज लाइक द कूल कूल किड. क्राइटेरिया. या मतलब और हम भाई लोग. ऐसा होता था कि जैसे ऐसे ब्रेसलेट्स इफ यू आर गेटिंग समबडी, 3-4 लोगों के लिए, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए, और बाकी सबके लिए तुम नहीं, आई थिंक 3 कैटेगरीज होती थी. एक हो गया ब्रेसलेट वाला, हाँ. एक होता था रस्सी वाले में भी थोड़ा हाँ, वो सेमी ना सुंदर, बीड्स टाइप होता था देन उसमें एक लाइक होता था. फ्रेंड्स लिखा होता था. नहीं वो लोएस्ट क्वालिटी है. अच्छा. सेमी इज कि वो है तो धागा, बट देर आर चार्म्स एंड एलिमेंट्स टू इट. सबसे गंदी क्वालिटी का हो गया कि भाई बाय चांस ही दे दिया किसी ने तो तो उसमें उसको. बस फ्रेंड्स लिखा हुआ बट है. आई रिमेम्बर कि भाई इतना तो हमारा दिमाग चलता भी नहीं था. मतलब इवन इफ वी आर नॉट फ्रेंड्स बट देन अगर तुमने मुझे किया है तो फिर मैं भी करूंगी. लाइक आई हाँ, विल आल्सो टाई वो बट तुम देन. 10-15 एक्स्ट्रा कैरी करके लगते ही हाँ, थे ये ना जस्ट इनके. इन केस बट देन किसी ने दे दिया. इट वाज नेवर लाइक कि नहीं तू मेरी दोस्त है तो लगा. इवन इफ यू आर नॉट टाइंग मी हम्म. ऐसा नहीं होता था. मैं कर रही हूँ तो तुझे भी करना पड़ेगा. हाँ एंड तो फॉर मी द लोएस्ट वन यूज्ड टू बी दैट रबर वाले. मतलब धागे भी नहीं होते थे, याद है वो रबर वाले आते थे. हाँ, वो बस ऐसे बना बस ऐसे दिया. पहना दो. तो आई थिंक वो मेरे लोएस्ट थे. और फिर फर्स्ट. भाई सबसे गंदा हार्ट ब्रेक होता था अगर जिनके लिए तुम ब्रेसलेट वाली कैटेगरी तुमने चूज करी है और वो तुम्हें रस्सी वाला पहना दे. भाई Oh God. आई थिंक ट्रू ट्रू हार्ट ब्रेक था वो. फर्स्ट हार्ट ब्रेक. सीरियसली. बट ऐसे हम लोग का ना ऐसा हमारे होता था कि टीचर्स हमें पहनने नहीं देते थे स्कूल के अंदर ऑब्वियसली. तो हम लोग जैसे ही डिस्पर्सल टाइम होता था फिर बाहर जाके एकदम हम लोग एक्स्ट्रा टाइम रुके हैं क्लास में जस्ट टू टाई ऑल द बैंड्स दैट हाँ, वी हैव. बस के आसपास सब चालू हाँ. कर देते एंड थे. देन पूरा फोल्ड करके स्लीव्स और इतना पूरा हाथ भरा हुआ है. भाई क्रेजी. पता नहीं क्या मजा मिल जाता और था. एक दिन पहले जाके खरीद के ला रहे हैं पापा के साथ जाके. गॉड. ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. क्रेजी 3 तो फन. मेरे ब्रेसलेट वाले फ्रेंड हैं, 2 मेरे ये वाले हैं, और 15-20 मैं ऐसे ले एंड लेती यू हूँ. रिमेम्बर कुछ बहुत जो अल्ट्रा कूल किड्स होते थे वो रिंग्स भी लेके आते थे फ्रेंड्स वाली. नहीं, ये या कुछ अलग हो रहा है तुम्हारे स्कूल नहीं में भाई, भाई. रिंग्स भी आती थी ना. ओह, चलो हो गया, the शगुन हो hell is गया. wrong with you? शगुन हो गया आज भैया. बहुत अपशगुन हो चुका है ऑलरेडी. सो ठीक है, इसको शगुन मान लेते हैं. हाँ बट एनीवेज वो जो रिंग्स आती थी ना ऐसे नियॉन कलर की, उस पे ऐसे फ्रेंड्स लिखा होता था, बहुत लो क्वालिटी होती थी बट जस्ट टू बी कूल वो रिंग्स भी बनाते थे लोग. हाँ. सो मे बी वी कैन रैप दिस अप हियर. Yup, just that Cheers. to Fourth episode episode 4. done.
We're बहुत so ही proud. मुश्किलों से हम इस एपिसोड के अंत तक पहुंच पाए हैं। सुबह के 3 बज चुके हैं। 21 hours. भाई बहुत ही दिक्कतें हुई है You won't आज। believe this is our 11th or I think 12th or 13th take now. पता नहीं, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था और वो भी इतना अनकॉल्ड फॉर भाई। इट्स ओके, तो थोड़ा एनर्जी ऊपर नीचे लग सकती है। But it's fine, I वी think. शोड अप। And for some weird reason, अभी मुझे बहुत nostalgic चीजें याद आ रही है 2000, early 2000 अगर era की. हमने कुछ मिस किया, जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। How about we make part 2 of this one? वी कैन ट्राई टू मेक पार्ट 2। मुझे वो Yeah. स्केल भी याद आ रहा है जो ऐसे करके I पड़ाक know, करके right? बंद हो जाता था। So So tattoo yeah, आते थे वो boomer के साथ, हाँ remember? भाई। I think we will make a part 2 of this one. We can. Very much Till then, required. please like, share, subscribe. Also follow us on Instagram. Udharsh will be posting a lot of reels also. So show love, please. Yeah, that's it. Bye.